السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ لاکھوں بندگان توحید حج کی سعادت سے مشرف، میدان عرفات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے معطر، روح پرور مناظر، فلسطینیوں کے لیے رقت انگیز دعائیں، کئی آنکھیں اشکبار۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، معاشرے میں عدل کو نافذ کرو، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، فلسطینیوں کے لیے دعا کرو۔ شیخ ماہر بن حماد کا خطبہ حج۔ برقی خریدی اسکیم، KCR نے انکوائری کمیشن کا کیا بائیکاٹ، جانبداری کا لگایا الزام۔ ریاست میں جائیدادوں کی مارکیٹ ویلیو پر نظر ثانی، حکومت کی طرف سے رہنمائانہ خطوط جاری، اگست سے نئی قدر کا ہوگا اطلاع۔ بالاپور اور آصف نگر قتل واقعے کے ملزمین گرفتار، بڑھتے جرائم پر عوام میں تشویش۔ اور مختلف ریاستوں سے غیر قانونی طور پر منتقل کی گئی 1,80,00,000 سے زائد کی شراب کی بوتلوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن، ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر، سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا جوہری۔ دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ لاکھوں بندگان توحید حج کی سعادت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ ہفتے کو مسجد نمراہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہو گیا اور لاکھوں بندگان توحید کو حج کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اس سے پہلے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے میدان عرفات کی وادی گونج اٹھی۔ وقوف عرفہ کے موقع پر رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نظر نہیں آیا، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت دیکھی گئی۔ سب ایک ہی لباس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ مساوات کا یہ عظیم اجتماع دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ حجاج جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب سے ہی میدان عرفات کی طرف نکل پڑے تھے۔ حجاج اکرام رات بھر مزدلفہ میں قیام کریں گے۔ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک حجاج اکرام ذکر الہی اور دعاؤں میں مصروف رہیں گے۔
शैतान को मारने के लिए रात में ही कंकरियां जमा की जाएंगी और फिर 10 ज़िलहज्जा की सुबह बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए मीना की तरफ कूच करेंगे। रमी जमार के बाद सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए कुर्बानी दी जाएगी और इसके बाद हुज्जाज इकराम बाल कटवा कर एहराम खोल देंगे। हुज्जाज इकराम अपने मुल्क रवाना होने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ यानी तवाफ़े विदा करेंगे। सऊदी हुकूमत की तरफ से अल्लाह के मेहमानों के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। खैमों के शहर मीना से लेकर मैदान अरफात तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द सना से फ़ज़ाएं मुअत्तर हैं। दुनिया भर के मुसलमान उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस गज़ा के मुसलमानों के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे हैं। हज के दौरान इज्तिमाइयत का यह अज़ीम शान मंजर शायद ही कोई दूसरा मजहब पेश कर सकता हो। मुसलमान एक लिबास में एक सफ में खड़े हैं, किसी को किसी पर बरतरी नहीं है। जब अल्लाह की बारगाह में सब सर झुके हैं और हाथ के लिए उठे दुआ तो उम्मत मुस्लिमा के लिए ही दुआएं हो रही हैं। मस्जिद नमराह में खुतबे हज के बाद फलस्तीन के मुसलमानों के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की गईं, कई आंखें अश्कबार देखी गईं। إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا ليكون ذلك معينا له على الذكر وقد وقف صلى الله عليه وسلم ذكر الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا اللهم كن لهما مؤيدا ونصيرا اللهم جازهما خير الجزاء تقبل من الحديث واقتلت توبتهم وقضيت حوائجهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वालों ने हमेशा हिदायत पाई है। अल्लाह पर तवक्कल करने वालों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। शैतान के धोखों और वसवसों से खुद को महफूज रखो। मस्जिद निमरा से खुतबे हज देते हुए मस्जिद अल हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हम्माद ने मुसलमानों को यह तलकीन की। इमाम मस्जिद निमरा ने कहा कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को लोगों के लिए पसंद किया है। ऐ लोगों, फसाद से दूर रहो, नाहक किसी का कत्ल न करो। इस्लाम फहाशी और बुराई से मना करता है। किसी की अमानत में क़यामत न करो। शराब और जुए की लानत से खुद को महफूज रखो। जो मोमिनों को तकलीफ देते हैं वो कभी फलाह नहीं पा सकते। एक दूसरे से ताउन करो, रिश्तेदारों की मदद करो, मदद का जज्बा कायम करो। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करके दर्जात बुलंद करने वाला है। वादी मीना से लेकर मैदान अरफात तक सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया है और फिजा से भी मुकामात मुकद्दसा पर नजर रखी जा रही है। आज़मीन की सलामती के लिए ममलकत सऊदी अरब में हजारों सिक्योरिटी अमले को तैनात किया गया है।
तेलंगाना के अपोजिशन लीडर KCR ने कहा कि बरकी मुआहदे और खरीदी की तहकीकात के लिए जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है उसके सामने हाजिर होने और कुछ कहने से उनको कोई फायदा नहीं होगा। जुडिशियल कमीशन ने इन तहकीकात के सिलसिले में KCR को तलब किया था। हाजिर होने के बजाय KCR ने कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कमीशन को तफसीलात से वाकिफ करवाया। 12 सफहात पर मुश्तमिल मकतूब में KCR ने कहा कि तमाम कवायद और कानून के मुताबिक काम किया गया है। हर काम में मरकजी हुकूमत की मंजूरी लेकर काम किया गया है। KCR ने कहा कि ERC इदारे के फैसले पर कमीशन नहीं बिठाया जा सकता। ये बात रेवंत रेड्डी की हुकूमत नहीं जानती। ये सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए तश्कील दिया गया कमीशन है। उन्होंने कमीशन पर इल्जाम लगाया कि कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमानी बयान दिया है। कमीशन के बयान से ऐसा लग रहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत के खिलाफ रिपोर्ट देने वाले हैं। KCR ने कहा कि ये तहकीकात गैर जानिबदाराना तौर पर नहीं हो रही हैं और कमीशन की तहकीकात के सामने कुछ भी कहना बेफैज होगा। वो जो कुछ भी कहेंगे वो खातिर में नहीं लाएंगे। कमीशन के सामना न करने ही बेहतर होगा। KCR ने कमीशन के जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी से अपील की है कि वो कमीशन से इस्तीफा दें। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने जुडिशियल इंक्वायरी कायम करते हुए L नरसिम्हा रेड्डी को उसका सरबराह मुकर्रर किया है। कमीशन ने KCR को 15 जून को पेश होने की नोटिस जारी की थी। हुकूमत ने जायदादों की मार्केट वैल्यू पर नजरसानी करने रहनुमाना खतूत व कवायद जारी किए हैं। कमिश्नर व इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन स्टैंप्स नवीन मित्तल की जानिब से एक तफसीली मेमो जारी किया गया, जिसमें शहरी इलाकों, देही इलाकों और आम इलाकों में किन खतूत पर जायदादों की बाजारी कीमत तय की जाए इसकी सराहत की गई। इस अमल का आगाज 18 जून से होगा और अगस्त की पहली तारीख तक इस काम को मुकम्मल करने का कैलेंडर जारी किया गया। एडिशनल कलेक्टर्स RDO और महकमे माल के अहदेदारों के साथ इब्तिदाई इजलास मुनक्किद करते हुए अपने दायरे इख्तियार में आने वाले तीनों ज़मरों, शहरी, देही और आम इलाकों के मार्केट वैल्यू का खाका तैयार करेंगे। मार्केट वैल्यू पर नजरसानी की जाकर कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन को रिपोर्ट पेश की जाएगी। यह काम 10 मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर अगस्त की पहली तारीख से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा और नजरसानी शुदा नए मार्केट वैल्यू का इतलाक शुरू हो जाएगा। शहरी इलाकों में जायदादों की कीमत व कदर जांचने के 10 निकात दिए गए हैं। बलदी हुदूद, महल्ला या कॉलोनी, एक यूनिट, कमर्शियल या रिहायशी, इसके मुताबिक इसकी वैल्यू का तयन किया जाएगा। देही इलाकों के लिए 8 निकात दिए गए हैं, जिसमें ज़रई, गैर ज़रई, आराजियात की सराहत और दीगर उमूर शामिल होंगे। आम ज़मरे में मुख्तलिफ शहरी इलाकों की बलदी कॉरपोरेशन के लिए मास्टर प्लान उन इलाकों की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी जैसे उमूर का जिक्र करते हुए मार्केट वैल्यू पर नजरसानी की सिफारिश की गई है। हुकूमत ने जिला इंतजामिया में बड़े पैमाने पर अदोबदल करते हुए 20 अजला के नए कलेक्टर्स मुकर्रर किए हैं। कलेक्टर पेड्डापल्ली मुजम्मिल खां का तबादला करते हुए VP गौतम मुतबदला की जगह उन्हें कलेक्टर खम्मा मुकर्रर किया गया। मुजम्मिल खां की जगह पर कोयासरी हर्षा को पेड्डापल्ली का कलेक्टर मुकर्रर किया गया। कलेक्टर जगतियाल यास्मीन बादशाह का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज खम्मम B सत्य प्रसाद को जगतियाल का कलेक्टर मुकर्रर किया गया। कलेक्टर मंशरियाल B संतोष को B उदय कुमार मुतबदला की जगह कलेक्टर नागर कर्नूल बनाया गया। जिन अजला के कलेक्टर्स बदल दिए गए हैं इनमें सिरसिल्ला, करीमनगर, कामारेड्डी, कोत्तागुड़म, भोपालापल्ली, नारायणपेट, हनमकुंडा, महबूब नगर, विकाराबाद, नलगुंडा, वनपरती, सूर्यापेट, वरंगल, मुलुगु और निर्मल शामिल हैं। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खत्म होने के बाद जिले नज़्म नस्क ने इन नए तकर्रुरात और तबादलों के जरिए बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी वकुमारकर ने अपनी सालगिरह जिला रंगारेड्डी के सोशल वेलफेयर अखामती स्कूल की लड़कियों के साथ मनाई। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर भट्टी वकुमारकर ने कहा कि स्कूल में उन्हें सालगिरह मनाकर बहुत खुशी हो रही है। स्कूल के मसाइल से वाकफियत हासिल करने के लिए उन्होंने यहाँ सालगिरह मनाने का फैसला किया है। गरीब अवाम की जिंदगियों में खुशी लाना ही हमारी हुकूमत का मकसद है। आलमी सतह पर मुकाबला करने के लिए तलबा को इंसानी वसाइल के तौर पर तैयार करना ही हमारा मकसद है। इंतखाबी वादे के मुताबिक हर मंडल में तेलंगाना पब्लिक स्कूल कायम करेंगे। इसके लिए बजट में फंड्स भी मख्तस करेंगे। इंटरनेशनल स्कूल के तर्ज पर 20 से 25 एकड़ पर इंटीग्रेटेड अखामती स्कूल कायम किए जाएंगे। मुसाबकती इम्तिहानात के लिए हुकूमत की तरफ से हर तरह की मदद की जाएगी। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने भी
खिताब किया। हुकूमत ने तमाम जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो अक़लियतों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स जारी करें। ये सर्टिफिकेट्स तहसीलदार की जानिब से जारी किया जाता है। महकमे माल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया। तालीमी इदारों में दाखिलों, नीट, एमसेट, इम्तिहानात की काउंसलिंग, हत्ता के तकर्रुआत के लिए BCE ज़ुमरे के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स की जरूरत दरकार होती है। प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए अक़लियती उम्मीदवारों को हुकूमत की जानिब से जारी करदा सर्टिफिकेट दिखाना होता है। अक़लियती तबक़ात के ज़ुमरे में मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बुद्ध और पारसी शामिल हैं। हुक्मनामे में सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा भी दिया गया है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट में कौमियत व मजहब की सराहत के अलावा OC, BCE वगैरह जिस किसी ज़मरे से ताल्लुक हो उसका जिक्र किया जाएगा। ज़िला कलेक्टर से कहा गया है कि वो दिए गए प्रोफार्मा के मुताबिक इन सर्टिफिकेट्स की इजराई के लिए जरूरी इक़दाम करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के सरकारी हॉस्पिटल्स में मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर तिब्बी खिदमात के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला शब रोज मसरूफ हैं। रुकन असम्बली ने हफ्ते को मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट, बोर्ड मेंबर्स, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ इजलास मुनक्किद किया। सुपरिटेंडेंट त्रिलोक श्याम ने बताया कि हॉस्पिटल के सदर नशीन अहमद बलाला की क़यादत में हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। सदर नशीन हॉस्पिटल अहमद बलाला ने हॉस्पिटल की कारकर्दगी और दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। रुकन असम्बली ने डॉक्टर्स पर जोर दिया कि अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जरूरत हो तो उसे इल्म में लाएं, उसे फौरी यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने डॉक्टर्स पर जोर दिया कि किसी भी मर्ज से मुतासिर अफराद को मुमकिन इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। रुकन असम्बली ने यह भी कहा कि हॉस्पिटल में जो खिदमात दस्तियाब हैं उसके बारे में भी शऊर बेदार किया जाए। उन्होंने हॉस्पिटल के अमले की कारकर्दगी की भी सताइश की। My Dr. Trilok Sham, Medical Superintendent, Area Hospital, Malakpet. Today, under the chairmanship of Honorable MLA Balala Saab, we have, Sir has chaired a Hospital Development Society meeting today, along with all Honorable HDS members, and Sir has taken a detailed review, specialty wise. जो भी हॉस्पिटल में स्पेशलिटीज़ है, हर एक स्पेशलिटी का डॉक्टर से इंटरेक्शन करे, उनसे क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट्स पूछे और उनको इनकरेज करे कि ऑल जो भी पेशेंट्स अपने हॉस्पिटल को आ रहे हैं उनको बेहतरीन सर्विसेज दे, सो दैट जो गरीब पेशेंट्स है उनको बेनिफिट हो सके। सो हर एक डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स स्पेशलिटीज़ मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में है, हर एक डिपार्टमेंट डॉक्टर का जो HOD है, हर एक स्पेशलिटी हर एक डॉक्टर से साहब MLA साहब आज बात करे, उनका फीडबैक लिए और उनका रिव्यू लिए और उनको गाइड करे, उनको एडवाइस भी करे कि कैसे कैसे अपन बेहतरीन सर्विसेज अपने मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के पेशेंट्स को अपन दे सकते हैं। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी डॉक्टर साहब के सामने रखे हैं और साहब वॉज वेरी ग्रेसफुल and we really appreciate and we are really honored, we are so lucky and that sir has sanctioned immediately one CM machine for orthopedics department. Then sir has also told us to send us proposals for CT machine also and for new dental chair also. And हमारे पास जो फोटोथेरेपी यूनिट्स है उसके लिए जो अपने पास सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी चल रहा है, साहब से बोलो जो पीडियाट्रिक रिक्वायरमेंट था कि डबल सरफेस फोटोथेरेपी चाहिए, सर इमीडिएटली ये सब उसके लिए भी प्रपोजल्स रेडी करने के लिए कि डबल सरफेस फोटोथेरेपी भी मलकपेट में रहना चाहिए। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू MLA साहब फॉर दैट ऑल्सो। शहर में बकरों के बाजार शश तो गए हैं, लेकिन इस बार खरीदारों की कमी देखी जा रही है। कुर्बानी के लिए छोटे जानवरों की कीमत इब्तिदा में ही ज्यादा बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरह से खरीदारों की कमी देखी गई, इससे यह कहा जा सकता है कि इतवार को कीमतों में गिरावट हो सकती है। इस पर तालीमी साल के आगाज, कॉलेजेस में दाखिलों की वजह से बाज अफराद बड़े जानवरों के हिस्से को तरजीह दे रहे हैं। बड़े जानवरों की फरोख्त में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया। बड़े जानवरों के हिस्से 2800 रुपए से 4100 के दरमियान रखे गए हैं। हफ्ते की शाम तक भी मलकपेट, चंचलगुड़ा, बाबा नगर, शमशीरगंज, जियागुड़ा, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, आसिफ नगर, टोली चौकी, बारकस, किलवत, उपगुड़ा के बाजारों में खासी चहल पहल नहीं देखी गई। उम्मीद की जा रही है कि इतवार तक पड़ोसी रियासतों से और भी बकरे आने वाले हैं, जिससे कीमतों में कमी हो सकती है।
वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा की सदारत में पोडा अराजी के मसले पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वजीर सीता अक्का के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में कोंडा सुरेखा ने कहा कि जंगलात की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर पोडा अराजी पर काश्त करने वालों के मफादात का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के ओहदेदार किसी भी तरह पूरे डिसिप्लिन के साथ जंगलात के कानून पर अमल करें। पोडू अराजी पर काश्त करने वाले खानदान को कोई मुश्किल नहीं होगी। काश्त के नाम पर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पोडू अराजी का दावा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस हुकूमत में गैर मुस्तहिक अफराद को पोडू अराजी हवाले की गई है। वजीर मौसूफ ने जंगलात के अहदेदारों को पोडू अराजी तकसीम की रिपोर्ट देने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात के पेश नजर पोडू अराजी पर काश्त करने वालों के लिए जरूरी इकदाम करें और साथ ही साथ रियासत में हरियाली में इजाफा करने के प्रोग्राम के इकदाम किए जाएं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सी दियागर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने तालीमी निजाम को कमजोर कर दिया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने रियासत भर में कॉर्पोरेट तालीम को फरोग दिया है। गरीब तालीम हासिल करने वालों की बददुआली है। 10 साल में 36 बच्चों की जानें गई हैं। सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए थे। केसीआर ने 12 खानगी यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी थी। सरकारी यूनिवर्सिटी के मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत ने सरकारी तालीम की तरक्की के लिए 6 महीनों में 60 बार जायजा लिया गया। कई तब्दीलियां की गई हैं। महकमे तालीम में इंसाफ से काम करने वाले ओहदेदार को मुकर्रर करना मुस्बत फैसला है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी तहकीकाती कमीशन की मियाद में 1 हफ्ते की तौसी करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहकीकात सिर्फ ओहदेदारों तक महदूद न रहें। तहकीकात के लिए सियासी कायदीन को तलब करें। महकमा बरखी में असेंबली में बदनवानी के इल्जाम लगाने वाले रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, जाना रेड्डी, बीजेपी के लक्ष्मण को तलब किया जाए। इन कायदीन ने पूरे सबूत के साथ इल्जाम लगाए थे और उस वक्त की बीआरएस हुकूमत से सवाल किया था। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहफ्फुजात के बारे में भी सिर्फ ओहदेदार से तहकीकात की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो इल्जामात लगाने वाले हैं उन सियासी कायदीन से सबूत पेश करने का मुतालबा करें। तेलंगाना कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले रुकन काउंसिल महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तहकीकात से केसीआर में खौफ पैदा हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने जो गलतियां की हैं एक एक करके मंजर आम पर आ रही हैं। केसीआर ने जो गलतियां की हैं उनकी सजा मिलेगी। 12 सफात का मकतूब लिखने के बजाय वो खुद कमीशन के रूबरू भी कह सकते थे। अगर गलती नहीं की है तो कमीशन के सामने साबित करें। बरखी खरीदी बहुत बड़ा स्कैम है। अवाम को हकायक मालूम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि केसीआर को तहकीकात में ताउन करना चाहिए। बीआरएस पार्टी के लीडर कृष्णांत ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 6 माह में 6 स्कैम किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 6 गारंटियों पर अमल करने के बजाय 6 स्कैम किए हैं। चावल स्कैम, शराब, फ्लाई ऐश स्कैम हुकूमत ने किए हैं। 11 जनवरी को डिजिटल टिकट के लिए दिए गए टेंडर्स को मनसूख किया है। ऑफलाइन टेंडर शुरू कर दिया है। आरटीसी टिकट कमीशन सीधे कंपनी के खाते में जा रहे हैं। इस कमीशन में पूनम प्रभाकर का कितना हिस्सा है? सवाल करने वालों को मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। महकमे ट्रांसपोर्ट में हो रही बदनवानी के बारे में वजीर आला जवाब दें। कोठी डीएमई दफ्तर के पास आशा वर्कर्स ने अपने मुतालिबात को लेकर धरना दिया है। एहतजाजियों का कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने से पहले 18,000 तनख्वाह देने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। मुलाजिमीन का कहना था कि फौरी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस और आकार आशा हॉस्पिटल की तरफ से भरोसा सेंटर में कुदरती तौर पर कटे होंठ वाले अफराद के लिए इलाज की पहल की गई है। इस सिलसिले में भरोसा सेंटर में कैंप लगाया गया था। पुलिस की मुख्तलिफ ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। 105 मरीजों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। आसिफ नगर पुलिस ने 13 तारीख की रात हुए मोहम्मद कुतुबुद्दीन के कत्ल के मामले को हल करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 13 तारीख को रात 10:30 बजे कुतुबुद्दीन अपने भाई के वर्कशॉप पर आया था, जबकि ताहिर, इमरान, अमान, मुजफ्फर, जावीद उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने हथियारों के साथ कुतुबुद्दीन पर हमला कर दिया। कुतुबुद्दीन वहीं पर गिर पड़ा। उसे खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया था, जहां वो जख्मों से जांबर न हो सका। पुलिस ने बताया कि पुरानी मुकासिमत की वजह से यह कत्ल हुआ है। यह भी बताया गया है कि कुतुबुद्दीन ने 2023 अगस्त के महीने में मुलजिमीन के भाई सैयद मुजाहिद का कत्ल किया था। आसिफ नगर पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए आले जुर्म भी बरामद कर लिया है।
दूसरी तरफ बालापुर पुलिस ने 13 जून को हुए सैयद समीर के कत्ल में मुलविस 4 मुलजमीन बशमूल एक जुनाइल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 14 जून को सैयद मुनीर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बड़े बेटे सैयद समीर का 13 जून को कत्ल किया गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 2 माह पहले समीर का बाबानगर के साकिन सुहेल के साथ झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े को लेकर सैयद समीर का कत्ल किया गया। यह भी बताया गया कि सुहेल और उसके साथी सूफियान ने समीर का पहले अगवा किया और उसे मोटरसाइकिल पर बालापुर के गुरम चेरू के सनसनी इलाके में ले गए और इसे मौलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। तीनों मुलजमीन को अदालत में पेश कर दिया गया है। सुहेल के अलावा गौस, अरबाज और जुनाइल को गिरफ्तार किया गया है। अलवाल में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकिली को नाकाम बनाया गया है। बताया गया है कि मुख्तलिफ मकामात से जमा करते हुए चावल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन इसे पकड़ लिया गया। बाज अफराद को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। मुत्तहिदा जिले मेदक की महकमे आबकारी की टीम ने असनापुर में छापा मारकर एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से गांजा जब्त किया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के श्रीनिवास राव की टीम ने पटनचेरू मंडल के इलाके इसनापुर में एक इतला पर छापा मारा और गैर कानूनी तौर से गांजा रखने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 620 ग्राम ड्राई गांजा जब्त करते हुए इसे SHO पटनचेरू पुलिस के हवाले कर दिया। आबकारी टीम में सर्कल इंस्पेक्टर गांधी नायक, सब इंस्पेक्टर यादैया, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम के अलावा दूसरों ने हिस्सा लिया। महकमे आबकारी ने मुख्तलिफ मकामात से जब्त की गई 10,222 शराब की बोतलों को नाकारा बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर दशरथ की मौजूदगी में गोवा, हरियाणा और दिल्ली से लाई गई 1 करोड़ 43 लाख रुपए की शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला दिया गया। आबकारी हुक्काम के मुताबिक पड़ोसी रियासतों से बगैर इजाजत शराब की मुंतकिली नहीं की जा सकती है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। लाखों बंदगान तौहीद हज की सआदत से मुशर्रफ, मैदान अरफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना से मुअत्तर, रूह परवर मनाजिर, फलस्तीनियों के लिए रक़्क़त अंगेज दुआएं, कई आंखें अश्कबार। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, माशरे में अदल को नाफिज करो। अल्लाह सुनने और देखने वाला है। ज़कात अदा करो, फलस्तीनियों के लिए दुआ करो। शेख माहिर बिन हम्माद का खुतबे हज। बरकी खरीदी स्कैम,
KCR ने इंक्वायरी कमीशन का किया बायकॉट, जानिबदारी का लगाया इल्जाम। रियासत में जायदादों की मार्केट वैल्यू पर नजरसानी, हुकूमत की तरफ से रहनुमायाना खतूत जारी, अगस्त से नई कदर का होगा इतलाक। बालापुर और आसिफ नगर कत्ल वाक़े के मुल्ज़िमीन गिरफ्तार, बढ़ते जराइम पर अवाम में तशवीश। और मुख्तलिफ रियासतों से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई 1,80,00,000 से जायद की शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला दिया गया। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।